ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ادائیگی ہو اور عزت کے ساتھ ادائیگی ہو، لوگوں کی جو ہے عزت نفس کو مجروح کیے بغیر یہ ادائیگیاں کی جائے ایک اچھے طریقے سے، ایک اچھے ماحول میں، اور ہم اس میں کافی حد تک انشاءاللہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین قسطیں ملیں گی، اور یہ اپنی 3 قسطیں لینے کے حوالے سے آپ کے انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ جی ہاں، اس حوالے سے حتمی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ کس تاریخ سے آپ کو یہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 قسطیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور کن لوگوں کو یہ 3 قسطیں ملیں گی، اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام ریگولر بینیفیشریز بھی اب 3 قسطیں لے سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط و ضوابط پر آپ کو پورا اترنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے اب نااہل افراد کو بھی پیسے ملنے والے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگ جو پہلے نااہل تھے، جن کو پہلے پیسے نہیں مل رہے تھے، ان کو بھی اہل کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کچھ عرصہ پہلے اس پروگرام سے پیسے ملنا بند ہوئے ہیں، مطلب انہیں نااہل کیا گیا ہے، تو اب اچانک سے وہ دوبارہ اہل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتانے جا رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے اس بڑی خوشخبری کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کے لیے یہ جو والٹ سمیں جاری کی گئی ہیں، ان پر آپ کے اکاؤنٹس بننا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس حوالے سے کہ یہ جو دسمبر والی قسط جاری ہو رہی ہے، یہ آپ کو یہ نئی والٹ سموں کے ذریعے نہیں ملے گی، بلکہ یہ قسط لینے کے لیے آپ کو قریبی کیمپ سائٹ ایک بار لازمی جانا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ کو تقریباً کیمپ سائٹ سے لینے والی آخری قسط پڑے گی۔ اس کے علاوہ تو آپ جانتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کی سمیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، آپ کے اکاؤنٹس بنائے جا رہے ہیں، اور یہ ٹارگٹ انشاءاللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اگلی قسط جاری ہونے تک مکمل کر لیا جائے گا۔ پھر آسانی کے ساتھ آپ کے انہی گھر بیٹھے آپ کے انہی موبائل اکاؤنٹس میں پیسے بھیج دیے جائیں گے، اور وہ قسط لینے کے لیے پھر آپ کو لائنوں تاروں میں اتنا نہیں لگنا پڑے گا۔ لیکن یہی پر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب یہ جو بچوں کے وظائف آنے والے ہیں، ان میں کتنا اضافہ ہوگا یا آپ کی کتنی رقم ہوگی، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کفالت پروگرام کی رقم پہلے رکی ہوئی ہے، کوئی پہلے والی قسطیں بھی، تو وہ آپ کو مل سکتی ہیں یا نہیں، اور موجودہ قسط آپ کی کتنی آئے گی۔ کچھ سوشل میڈیا پوسٹس میں بتایا گیا تھا کہ بھئی اس بار بھی 14,500 روپے کی قسط آئے گی، تو اس میں کتنی حقیقت ہے، اور کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب ابھی آپ کو دے دیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اگر کر دیا گیا ہے تو ابھی آپ کو مل سکتا ہے یا نہیں، یا کب سے ملنا شروع ہوگا، اس حوالے سے آپ کو جاننا لازمی ہے۔ تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے۔ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ابھی ہمیں سمیں نہیں ملی، تو ہم اپنی سم کے لیے کیسے اہل ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پیسے تو ملتے ہیں لیکن سم کے لیے اہل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو مطلب جو آخری قسطیں مل رہی تھیں، وہ ان کی ویسے بھی آخری قسطیں تھیں اس پروگرام سے، ان کو اب نااہل کر دیا گیا ہے، تو وہ لوگ بھی ظاہری سی بات ہے اب سم کے لیے اہل نہیں ہوئے، تو وہ بھی پریشان ہیں کہ ہمیں کنفرم نااہل کر دیا گیا ہے یا ہمارا کوئی سم کا مسئلہ ہے۔ تو وہ جب دفاتر میں جاتے ہیں یا اپنی سم لینے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ تو نااہل ہو چکے ہیں، اور وہ بیچارے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو پچھلی قسط ملی تھی لیکن ہمیں سم کے لیے اہل نہیں کیا گیا۔ تو اب اس مسئلے کا حل آپ گھر بیٹھے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک آسان ترین طریقہ کار بھی بتانے جا رہے ہیں، اس لیے توجہ طلب ویڈیو ہے، اس لیے آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، سمجھنا ہے، جو کچھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسکلمینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو وہ ابھی سے یوٹیوب چینل اسکلمینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن ربینہ خالد کی جانب سے باقاعدہ طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو آپ کو سمیں مل رہی ہیں، یہ بالکل مفت میں آپ کو دی جا رہی ہے، کہ اس سم کی رجسٹریشن پر کوئی بھی آپ سے کوئی معاوضہ طلب کرتا ہے، کوئی فیس لیتا ہے، تو آپ نے ہرگز 1 روپیہ بھی نہیں دینا، اور فوری طور پر اس حوالے سے بی اے ایس پی کے نمائندگان کو بھی بتا دینا ہے، بی اے ایس پی کی آفس شکایت بھی درج کروا لینی ہے۔ تو یہیں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کافی لوگ ہمیں بھی کمنٹس کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے سم لی اور سم کے عوض ہم سے 1,000 روپے لے لیے گئے، تو کیا یہ 1,000 روپے کی سم ہے؟ کچھ لوگ تو یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی 500 روپے والی سم ٹھیک رہے گی یا 1,000 روپے والی سم
ठीक रहेगी। तो देखें मेरे भाई और मेरी बहनें जो इस वक्त पैसे ले रही हैं या अपनी सिमें लेने के लिए बगैर किसी मालूमात के इधर उधर से सिमें ले रही हैं और उसकी फीस दे रही हैं, तो उनको एक बार हम बता दें कि ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक सिमें लेनी है वो कान खोल के सुन लें। बार बार हमने भी हर वीडियो में चीख चीख कर ये बताया है कि भाई ये सिम बिल्कुल मुफ्त में आपको दी जा रही है। इसमें ना ही कोई 500 रुपए वाली सिम है, ना ही कोई 1000 रुपए वाली सिम है, बल्कि बिल्कुल मुफ्त में आपको दी जा रही है। तो क्यों आप इधर उधर से जाकर 500 या 1000 रुपए की सिम खरीदते हैं? तो भाई देखें, आपको ये बाहर से मिलने वाली जो सिमें हैं ये आपका इतना नुकसान करेंगे कि आप सोच ही नहीं सकती। वो इस वजह से कि जब हुकूमत ने, जब BISP ने आपको सिम जारी करनी है तो वो खुद ही जारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता कि आप खुद ही अपनी सिम लेते, अपना अकाउंट बनाते, तो फिर आपको बस यही बता दिया जाता है कि भाई आप खुद जाकर अपनी सिम लें, अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड करवाएं, उस पर फलां तरीके से अपना अकाउंट बनाएं और आपको पैसे हम भेज देंगे। तो इस पूरे झंझट को झेलने का कोई शौक था BISP को या पूरी इंतजामिया को? देखें भाई, आप तमाम लोगों के फायदे के लिए ये काम किया जा रहा है, तो फिर आप वहीं से ये सिम लेना जैसे आपको BISP बता रहा है और हम बता रहे हैं। देखिए, हम आपके फायदे के लिए ये वीडियोस बनाते हैं, फिर भी अगर आप इग्नोर कर देते हैं, सुनते नहीं हैं, मुकम्मल मालूमात नहीं सुनते, या एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, मतलब गौर से नहीं सुनते, अमल दरामद नहीं करते, तो जरी सी बात है फिर आपको यही मसाइल और परेशानियां जो हैं वो आपका रास्ता रोक के रखेंगी। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई BISP की वॉलेट सिम जो है ये आपने BISP की ऑफिस से ही लेनी है, इधर उधर से कहीं से नहीं लेनी। सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर से ये सिम लेनी है, या फिर कुछ इलाकों में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कैंप साइट पर भी ये सिम मिल रही है, तो BISP की मुकर्रर करदा कैंप साइट से आप ये सिम ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी प्राइवेट बंदे से आपने कोई सिम नहीं लेनी, कोई अकाउंट नहीं बनवाना। हाँ, ऐसे लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं उन्हें यकीनन हमारी ये बातें तीखी मिर्ची की तरह लग रही होंगी, लेकिन हम आपको भी बता देना चाहते हैं कि भाई ये जितने भी लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं ये बहुत गरीब लोग हैं और मुस्तहिक और बहुत हकदार लोग हैं। लिहाजा इन लोगों का हक कभी भी छीनने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक गरीब बंदे की दुआ जो है वो अल्लाह ताला की जात बहुत जल्द सुन लेती है और कबूल भी कर लेती है। तो एक ऐसी जात जिसको आप भी मानते हैं कि वो बहुत रहीम है, करीम है, गफार है, जबार है और कहार भी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान इधर भी दिया करें कि आप किन लोगों का हक खा रहे हैं। उम्मीद काफी है कि कुछ लोग तो इस बारे में जरूर सोचेंगे और इनकी सोचने की बजाय आपने अपनी सलाहियत जो है वो सोचने की बढ़ानी है और आपने ना ही कोई कटौती करवानी है, ना ही इधर उधर से कोई सिम लेनी है, ना ही इधर उधर से कोई अकाउंट बनवाना है। बहरहाल हमारी इतनी डिबेट यकीनन काफी सारा वक्त आपका भी हमने लिया और आपके फायदे के लिए लिया, तो हम चाहते हैं कि अगर आप इस तरह के मसाइल में ना पड़े तो इस तरह की डिबेट तो हमें ना करनी पड़े ना। बहरहाल उम्मीद काफी है कि अब आपको इस हवाले से समझ आ चुकी होगी। अब अपने असल मौजू की जाने बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अब बहुत सारी बेनिफिशरीज को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 किस्तें मिलने जा रही हैं और दिसंबर वाली किस्त के हवाले से काफी सारे लोग इंतजार में हैं। तो इस हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि ऐसे तमाम लोग जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, डायनामिक सर्वे भी जिनका कंप्लीट है, जिनके पहले भी पैसे आते रहते हैं, जिनके बच्चों के पैसे भी आते रहते हैं, तो वो अब तैयार हो जाएं। उनके बच्चों के पैसे भी आने वाले हैं, उनकी कफालत प्रोग्राम की किस्त भी आने वाली है। तो इंशाल्लाह जनवरी के पहले ही हफ्ते में आप तमाम लोगों को ये कफालत प्रोग्राम की 13,500 रुपए पर मुश्तमिल इस साल की आखिरी छमाही किस्त जारी कर दी जाएगी। ये जो सोशल मीडिया पे आप सुन रहे हैं कि भाई ये दिसंबर वाली किस्त 14,500 रुपए मिलेगी या 15,500 मिलेगी, तो भाई ये सरासर फ्रॉड है। मतलब इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि हम हकीकत पर मबनी मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये भी आपको कंफर्म करना चाहते हैं कि भाई 13,500 रुपए की कफालत प्रोग्राम की किस्त आएगी। ये एक सिंगल किस्त होगी, एक ये किस्त, इसके अलावा 2 और किस्तें आपको मिलेंगी बच्चों की। जुलाई से सितंबर तक की किस्त जो है वो भी आपको जारी कर दी जाएगी और इसके अलावा अक्टूबर तक दिसंबर तक की बच्चों की ये जो तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की किस्त है ये भी आपको जारी कर दी जाएगी। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि टोटल आपको 3 किस्तें मिलेंगी, लेकिन इन 3 किस्तों की रकम जो है वो काफी भारी बन जाएगी, मतलब बड़ी रकम आपको मिलेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि पहले आपको कफालत प्रोग्राम की किस्त 13,500 रुपए लेनी पड़े और वो आप निकलवा लें। उसके बाद जो बच्चों के वज़ाइफ हैं वो भी तो डबल किस्त होगी ना। उसके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता होता कि उनके तमाम बच्चों के पैसे जारी हुए हैं या कितने बच्चों के पैसे जारी हुए हैं और ये पूरी रकम कितनी बनती है। तो जब आपको एक रकम के बारे में पता भी नहीं होगा कि वो 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, आप ये भी गौर से सुन लें कि हमने काफी सारी खवातीन के पैसे देखे हैं कि वो 70,000, 80,000, बल्कि 1 लाख रुपए तक की रकम भी उनके अकाउंट्स में पड़ी हुई है। तो वो चाहे उनके बच्चों की तादाद ज्यादा
है, बड़ी क्लासेज में वो पढ़ते हैं, पहले वाली उनकी कोई किस्तें उनके अकाउंट्स में पड़ी हुई हैं, तो ये काफ़ी सारे मामलात हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ये जितनी भी अपडेट्स बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से इजाफे की आई हैं या कफालत प्रोग्राम की किस्त में इजाफे की आए हैं, तो ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। इस हवाले से आपको इंतजार करना होगा। जो 2026 की पहली छमाही किस्त आएगी ना, जनवरी तक मार्च तक की, उसमें इंशाल्लाह आपको इजाफे वाली रकम जरूर मिलेगी, चाहे वो 14,500 रुपए हो या 15,000 हो या 16,000 हो, जितनी भी होगी। वैसे इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तो ये बताया गया है कि 1,000 रुपए का इजाफा होने जा रहा है, जिसके बाद 13,500 रुपए की रकम 14,500 रुपए हो जाएगी। तो वो इंशाल्लाह जो ही होगी हम आपको बता देंगे, आप रिलैक्स रहें। अगर आपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब किया हुआ है तो हम एक बात दावे से कह सकते हैं कि आपको किसी भी प्रोग्राम के हवाले से कोई परेशानी नहीं आने देंगे, कोई गलत खबर आपको नहीं मिलेगी, या इधर उधर से आपको गलत खबर सुनते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, तो उसकी हकीकत भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। आपका जो भी मसला होगा वो भी यहाँ पर सुना जाएगा, उसका भी हल आपको बताया जाएगा। इसलिए फौरन आप अपना मसला भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि ये 3 किस्तें किन लोगों को मिलेंगी, ये तो आपको पता चल चुका होगा कि जो लोग पहले से पैसे ले रहे हैं, जिनके बच्चों के पैसे भी पहले से जारी होते रहते हैं और डायनामिक सर्वे भी उनका मुकम्मल है और फिलहाल भी वो मतलब अहल हैं इस प्रोग्राम में, चाहे वो दोबारा अहल हुए हैं या पहले से डायनामिक सर्वे के बाद वो अहल हैं। तो इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि इसके अलावा कुछ लोग नए अहल हो रहे हैं, तो शायद ही उनको ये दिसंबर वाली किस्त ना मिले। अगर वो पिछले तकरीबन 10 या 15 दिन के अंदर अहल हुए हैं या अब किस्त जारी होने के दौरान वो अहल होते हैं, तो फिर दिसंबर वाली किस्त तो शायद उन्हें नहीं मिलेगी। इसके बाद की जो जनवरी तक मार्च तक की किस्त होगी उसमें उन्हें जरूर पेमेंट्स मिलेंगी। ठीक है, बच्चों के वज़ाइफ का इंदराज अगर वो करवाते हैं तो वो भी जरूर उनकी रकम मिलेगी उनको। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ऐसे लोग जो फाइलर बनने की वजह से, बिल ज्यादा आने की वजह से या अर्जेंट बेसिस पे ID कार्ड बनवाने की वजह से ना अहल हुए थे, उनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को आप दोबारा अहल किया जा रहा है। तो वो लोग, अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मसला बना है, इस तरह का सीन है, तो आप अभी 8171 वेब पोर्टल पर चले जाएं और वहां से अपनी अहलियत लाजमी चेक कीजिएगा। अगर आपको एक लाइन में ये लिखा हुआ नजर आ जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो फिर भी आपकी अहलियत के चांसेस काफी हद तक बढ़ चुके हैं। अगर इसके साथ साथ आपको वॉलेट सिम के लिए भी अहल करार दिया जाता है, तो आप कंफर्म समझें कि आप अहल हैं। आपको 8171 वेब पोर्टल ये खुशखबरी सुना रहा है कि आप अहल हैं। आप फौरन BISP के दफ्तर जाकर अपनी वॉलेट सिम रजिस्टर्ड करवाएं, वो वसूल करें और उसके बाद उसी पर आपका अकाउंट बनाया जाएगा और आइंदा के लिए आपको किस्तें जारी की जाएंगी। इसके साथ साथ कुछ लोग अहल हैं, वैसे उन्होंने डायनामिक सर्वे नहीं करवाया क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं थी, वो पिछले 1 साल के अंदर अंदर अहल हुए हैं। तो डायनामिक सर्वे तो उन लोगों के लिए जो पिछले 3-4 सालों से पैसे ले रहे हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने 1 साल के अंदर ये किस्तें लेना शुरू की हैं, तो उन तमाम लोगों को एक मसला आ रहा है कि वो सिम के लिए अहल करार नहीं पाया। उनमें से जितने भी लोग सिम के लिए अहल करार पाए वो तो जाकर अपनी सिम वसूल करें। बाकी जिन लोगों को सिम के लिए अहल करार नहीं पाया गया, तो वो लोग जो है वो फौरी तौर पर अपने अकाउंट से पहले वाली रकम जो पड़ी हुई है वो निकलवा लें। इंशाल्लाह अपनी रकम निकलवाने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको सिम के लिए अहल कर दिया जाएगा। तो ये तरीका उन लोगों के लिए है जो मतलब अहल हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन सिम की अहलियत का मैसेज उन्हें नहीं मिल रहा है। 8171 वेब पोर्टल पर उन्हें सिम के लिए अहल नहीं किया गया, या सिम लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि भाई आपकी सिम जारी नहीं की जा सकती। इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं कि शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होगा फिर भी सिम जारी नहीं की जाएगी, फिंगरप्रिंट्स एक्सपायर होंगे फिर भी सिम जारी नहीं की जाएगी। तो ये नादरा का मसला है, आप नादरा से फिंगरप्रिंट अपडेट करवाएं या CNIC अपडेट करवा लें। इसके साथ साथ अगर आपके नाम पर 5 सिम रजिस्टर्ड हैं तो आप अपने नाम से एक सिम लाजमी खारिज करवाएं ताकि आपकी वॉलेट सिम जारी की जा सके। तो इस हवाले से आपको तमाम मालूमात देने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुकम्मल मालूमात नहीं सुनते और बाद में मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको चाहे छोटी वीडियो बड़ी वीडियो जो भी तफसील आप तक पहुंचाने की हमारी एक ड्यूटी है वो हम जरूर पूरी करें। देखिए हमें तो छोटी वीडियो बनाने में फायदा है ना, आप ये समझे कि जब हमने 5 मिनट की वीडियो बनानी है तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट उस पे लगते हैं। बाकी जब हम एक 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो उस पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है। इतनी बड़ी वीडियो की एडिटिंग करना, उस पे रिसर्च करना, सब कुछ मिला के। तो इसलिए हम आपको यही कहते हैं कि भाई ये जितनी ज्यादा बहस करने वाली वीडियो होती हैं इनमें हम आपके फायदे की बात कर रहे होते हैं, तो इनको भी अगर आप सुन लेते हैं तो फिर आपके ये सवालात नहीं आते। जब ज्यादा सवाल आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमें उतनी ज्यादा तवील वीडियो बनाना पड़ती है, उस पर बहस करना पड़ती है, रिसर्च करना पड़ती है, उसकी मुकम्मल मालूमात तफसील के साथ आपको देना पड़ती हैं। तो इसलिए उम्मीद काफी है कि आइंदा के लिए आप इस हवाले से जरूर ध्यान रखेंगे और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि आपको साथ साथ जितनी भी हकीकी मालूमात हैं वो आपको देते रहेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई मसला है आपको प्रोग्राम्स के हवाले से, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके मसाइल जरूर हल किए जाएंगे। लेकिन एक बात आप जरूर याद रखें
रखें कि आप कमेंट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर लिया हुआ है वो बेहतर, वो आप भी कमेंट करेंगे, फौरन उनका कमेंट पहुंचेगा। और जो लोग पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो पहले सब्सक्राइब करेंगे, फिर अपना कमेंट जो है वो लिखेंगे, तो उनका मसला हम तक जरूर पहुंचेगा और उस मसले का हल उन तक भी फौरन पहुंचाएंगे। कुछ लोगों के सवालात आते हैं लेकिन उनके कमेंट्स जो हैं हाइड हो जाते हैं या हम तक नहीं पहुंचते यूट्यूब के फिल्टर्स की वजह से, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपका कमेंट हम तक पहुंचे। उसका एक ही हल है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद कमेंट करेंगे, फौरन हम तक पहुंचेगा। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल के रिमाइंडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।